विधायक, मेयर्स हम सभी के बीच आ चुके हैं। हम आप सभी का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि कृपया आप दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और आइए, ईश्वर के आशीर्वाद के बाद अब हम स्वागत की बेला की ओर अग्रसर होते हैं और स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिनके नेतृत्व में जीआईएस जैसे सफल भव्य आयोजन हम सभी ने देखे हैं और उन्हें उनके वादों के अनुसार धरातल पर भी साकार किया जा रहा है। आदरणीय एसीएस महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए साथ ही साथ आप उन्हें अंग वस्त्र भी भेंट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का चंदेरी स्टोल। और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी एसीएस महोदय से कि आप माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का भी स्वागत करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप आदरणीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी का भी स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगी एमडी जी श्री आशीष वशिष्ठ जी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री गुरु प्रसाद जी से कृपया आप मंचासीन विशिष्ट अतिथियों का भी स्वागत करेंगे। आदरणीय एमडी एमपीएसीडीसी श्री आशीष वशिष्ठ जी, आदरणीय प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री गुरु प्रसाद जी और आदरणीय एसीएस महोदय मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों का अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। सभी की करतल ध्वनि के साथ हम सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और करतल ध्वनि के साथ हम सभी स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम के संक्षिप्त विवरण और स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय एसीएस महोदय श्री संजय दुबे जी का। A very good evening to each one of you present here. Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, respected Chief Secretary Shri Anurag Jain ji, Honorable Minister Shri Kailash Vijayvargiya ji, Honorable Minister Tulsi Silawat ji, Honorable Member of Parliament, Honorable Member of Legislative Assembly, distinguished delegates, esteemed industry leaders, and valued partners. It's my privilege and honor to extend a warm welcome to each one of you at this landmark Madhya Pradesh Tech Conclave 2025. Today we gather here not to just discuss about the future, but to shape it through collaboration, through innovation, and decisive action. At the Global Investor Summit held in February 25 on 24th,
our Honorable Prime Minister has given us 3 mantras. And he said that if you have to lead, then the 3 pillars are the most important for Indian economy to grow. And they are tourism, textiles, and technology. Madhya Pradesh has embraced this vision with unwavering commitment, and the results speaks for themselves. हम कटिबद्ध हैं मध्य प्रदेश की तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए. We have done a historic investment mobilization because on earlier occasions there were always a question mark between the MOUs and actual execution of those MOUs. Within 2 months, I'm happy to share this, that we have successfully operationalized investment worth 1,700 crores, which would generate about 25,000 worth employment, just in 8 weeks of GIS. Hallmark of this endeavor is a relentless and consistent effort put in by Honorable Chief Minister, by our Chief Secretary, and a team of officials who went door to door, chased each and every investor, convinced them that if they have to invest, if they have to take the decision, they have to come to be in Madhya Pradesh. As we work, it's not only the investment opportunities that we are looking at, we are trying to develop the whole ecosystem. So what we are doing is, not only we are working on policy guidelines, which you would see today, we continue to work for establishment of COEs in almost all sectors to make sure that we have a constant stream of experts coming in, which is the most important requirement for any technical investment to happen in Madhya Pradesh. We have embraced policy-driven approach and a growth. Our proactive approach to clearances and approvals has set a new benchmark. That itself shows that within 2 months, how quickly we have moved from intention to actual execution, from intention to action. This is not merely a progress, it is a testament to Madhya Pradesh's commitment to the development and readiness to lead India's next phase of growth, economic and technological both. While we work hard, the tailwinds are also helping us. The reports of NASSCOM and MIT says that next wave of growth is not going to come from metro hubs, but it will be more dictated by cities like Indore, Bhopal, Gwalior, and Jabalpur. These are the hubs which will generate employment. These are the hubs where people would like to work. These are the places where the industry would like to come and set their shop. Let's look at the cost efficiency if you have to work on. The operating cost efficiency or the operating cost of Madhya Pradesh versus any of the bigger towns is about 40%. So you save 40% of your investment and you can then invest this money into your strategic investment opportunities that will exist. In deep tech leadership, if you do the analysis, you would realize, and there are multiple such reports, that about 60% of India's deep tech startups are not coming out of the bigger towns, but they are coming out from or emerging from places like Indore, Bhopal, Gwalior, and Jabalpur. Better workforce stability. More than 54% employers willingly are now employing people coming from these small towns or the tier 2 cities. And that is where the maximum benefit is coming to the investors as well as for the employers. Madhya Pradesh is not just participating in this shift. ब्रेकिंग है, बहुत बड़ा जीसीसी सेंटर की आज भूमि पूजन होने जा रही है. 2 महीने के अंदर उन्हें इंटेंशन टू इन्वेस्ट के बाद पूरी प्रोसेस करके ज़मीन दी जा चुकी है. एक पीपीपी पे इन्फोबीन्स का बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहा है. पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके उनको एलोकेशंस हो चुके हैं. आज 12 दूसरी इकाइयों को ज़मीन दी जा रही है. और उसके अलावा सीसीआईपी अप्रूवल्स आदि की जो स्थितियां हैं, कहने का अर्थ ये कि लगभग 25% एमओयू के कॉन्क्रीट स्टेप्स ज़मीन पर आ चुके हैं और अभी जीआईएस को मात्र 2 महीने हुए. मुझे विश्वास है जिस प्रकार का सपोर्ट हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी मंत्री परिषद का मिलता है. जब हम लोग ये पॉलिसीज़ बना रहे थे, मुझे याद है कि लगभग हर कैबिनेट में हर हफ्ते हमारी 4 से 5 नई पॉलिसीज़ अप्रूव होती थी. मात्र 1 सवा महीने के अंदर 18 नई पॉलिसीज़ करना,
ये दिखाता है कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद और मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वे में हम लोग थोड़े से पीछे रह गए थे दूसरे लोगों की तुलना में। यदि हम लोग देखें, देयर इज अनदर स्टैटिस्टिक्स 2011-12 से 23-24, 11-12 को हम लोग बेस इसलिए लेते हैं कि 11-12 में लास्ट हमारा बेस रिवीजन हुआ था, तो उसके बाद से आंकड़े कंपेरेबल बन जाते हैं। हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, देश में नंबर 1 पे काफ़ी मार्जिन से रहे, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन में या सर्विस सेक्टर में भी हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो देश की एवरेज से आगे थी। बट उसके बावजूद भी जब हम लोग पूरा सिनेरियो की बात करते हैं तो सामने एक ये बात आती है कि हम लोगों ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, इन सब में बहुत अच्छा काम किया, बट अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन अब हमारे फोकस एरियाज हैं, और साथ में हेल्थ और एजुकेशन, जिनकी तरफ हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। तब भी हम लोगों ने ये अनुरोध किया था कि आप मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पाएंगे। एक ऐसी जगह होगी जहां आपको एडमिनिस्ट्रेशन को चेज नहीं करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आपको चेज कर रहे होंगे आपकी मदद करने के लिए, और लगभग यही बात शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को देखने को मिली होगी। हमारी जो आईटी सेक्टर की चारों मेजर पॉलिसीज हैं, दे आर ऑलरेडी इन प्लेस, पर जैसा संजय बता रहे थे कि अभी एक दो और पॉलिसी की रिक्वेस्ट आ रही है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, तो शायद मुख्यमंत्री जी के जो संबोधन होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। पर हमारी जो पॉलिसी की आर्किटेक्चर है, इसमें 3 प्रमुख बातें हैं। सहायता और राज्य भी देते हैं, तो एक सहायता हम लोग भी देते हैं, और हमारी सहायता जो हम इंडस्ट्रीज को देते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी अन्य राज्य की तुलना में कम नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने पॉलिसी बनाने का जो अपना फ्रेमवर्क बनाया है, सबसे पहले हम लोग तुलना करते सभी राज्यों की, और उसके बाद अपनी क्या सब्सिडी किस प्रकार से देनी चाहिए, स्ट्रक्चर करना चाहिए, उसकी बात करते हैं। दूसरा जो प्रमुख पॉइंट है हमारा, वो ये कि किस प्रकार से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सामने लाएं। हम लोगों ने छोटे इंडस्ट्रीज के लिए ये तक कह रखा है कि आप बिना किसी परमिशन के चालू कर दीजिए, 3 साल बाद पहले बार आप इंस्पेक्शंस के लिए अप्लाई कीजिए। जो एक कल्पना भारत सरकार ने दी थी कि लोग तेजी से अपना काम आगे बढ़ा सकें, आपके सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आप काम शुरू कर सकते हैं, वो हम लोगों ने अनेबल किया हुआ है क्लॉज। हमारी पूरी टीम इस चीज़ पे काम करती है कि किसी इंडस्ट्रीज को जो जो परमिशंस की ज़रूरत है, क्या वो ऑलरेडी हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में है कि नहीं। अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से लगभग सारी की सारी अनुमतियाँ उसमें हैं, बट यदि कोई आदमी पॉइंट आउट करता है तो वी प्रोसेस एंड गेट इट, सो दैट आपको अपनी सारी परमिशंस टाइम बाउंड मैनर में मिल सकें। तीसरा, हमें यह भी समझ में आता है कि सबसे बड़ी समस्या लोगों को होती है लैंड यूज़ और ये सब इशू की। एक बार इंडस्ट्री की लैंड मिल गई, उस पर यदि आपको अपना स्किल सेंटर खोलना है या जो एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ होती है, कोई सर्टिफिकेशन सेंटर खोलना है, तो उन सब चीज़ों के लिए अनुमति लेने में लोगों को झंझट आते थे। तो वो सब हमने अपने पॉलिसी में ऑलरेडी अनेबल किए हुए हैं। सारी सर्विसेज इस प्रकार की जितनी हैं, उनमें काफ़ी सर्विसेज जो है वो डीम्ड अप्रूवल्स की स्टेज पर भी आती हैं। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश की विधानसभा ने जन विश्वास बिल को एक्ट बनाया, जिससे कि तकरीबन 60 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें वो डिक्रिमिनलाइज कर दी। जो एक सोच है कि हमारे छोटे छोटे वायलेशंस को क्रिमिनल फेस करना पड़ता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ता है, वो नहीं पड़ेगा। इस समय यदि हम वर्ल्ड मैप पर देखें तो जिस प्रकार से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, जो टैरिफ वार हो रही है, इंडिया जो इमर्ज हो रहा है, एक ऐसा देश इमर्ज हो रहा है जिस पे हर देश का विश्वास है। चाहे वेस्टर्न ब्लॉक हो, वो भी हमसे बात कर रहा है, और धीमे धीमे जो शुरुआत में बात होती थी, जब मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था भारत सरकार में, उस समय कि हम चाइना +1 में +1 बनना चाहते थे। आज की तारीख में पूरी दुनिया में लोग एक विश्वसनीयता खोज रहे हैं, और लगभग सभी बड़ी कंपनीज अपनी फैसिलिटी चाइना से बाहर मूव करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के सामने, जब हम अपने को एक बहुत तेज़ी के साथ वर्ल्ड जो लीडरशिप है, ऑलरेडी हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको और तेज़ी से पुख्ता कर सकते हैं अपने दावे को,
कि हम अब दुनिया की सुपर पावर बनने की ओर जा रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है। और इस ग्रोथ में जब बात आती है, जैसा संजय ने बताया कि अभी लोग जिस प्रकार की लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जनरेशन जी है, वो बात करती है कि भाई अब हमारे को क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाना है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों में, बड़े शहरों की तुलना में बहुत बेहतर है। मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे भी मेरा तुम्हारा नहीं होता, अंदर मैं यहाँ का मूल निवासी या मूल निवासी नहीं, ऐसी बातें मध्य प्रदेश में नहीं होती। हर आदमी जो बाहर से आके बसा है वो ये चीज़ को कह सकता है कि मध्य प्रदेश में कभी भी उसे बाहरीपन की फीलिंग नहीं होगी, जो कभी कभी हमारे किसी किसी इलाके में हो जाती है। मध्य प्रदेश हमेशा सबको वेलकमिंग करने वाला, ऑल एमलगमेटिंग काइंड की कल्चर रही है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, बाय एंड लार्ज क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, लोग सीधे साधे हैं। और जो संजय ने बताया वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ की जो हमारी मैन पावर है, वो यदि किसी बंदे को बोलो कि बेंगलोर जाके काम करे, उसके तुलना में 40% कम पर इंदौर में या भोपाल में काम करने को वो बच्चा तैयार होगा। उन्हें अपने इलाके से, यहाँ की ज़िंदगी से जो प्रेम है वो इस प्रकार की चीज़ है। और आईटी में सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा जो होता है वो मैन पावर का होता है। और जो पूरा इकोसिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बना के कर रहे हैं हम लोग, तो पूरी एजुकेशनल हब यहाँ पे है। IIT IIM इंदौर में है, फिर आईसर, निफ्ट, NID, इस प्रकार के नेशनल इंस्टीट्यूट्स भोपाल में हैं। जबलपुर और ग्वालियर में भी IIITDMs हैं। तो एक पूरा का पूरा एजुकेशनल इकोसिस्टम हमारे पास है। तो मुझे विश्वास है कि जो आगे वेव आने वाली है इन्वेस्टमेंट्स की, वो मध्य प्रदेश में आएगी। और जिस प्रकार का प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ये आप यहाँ देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहेंगे। जो पुराने इंटेंशंस हमारे पास हैं उनको तो हम लोग फैसिलिटेट कर ही रहे हैं। आई एम श्योर कि आज जो आप लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, आप लोगों ने, बहुतों ने अपना मन बनाया होगा मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने का। इसके बाद 1-to-1 मीटिंग्स और ये सारी जो चीज़ें, हम लोग अभी यहीं पे मौजूद हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग आज यहाँ से यदि आगे अपनी कंपनी का एक्सपेंशन चाहते हैं, कि कृपया आप पंचशील ट्रेड एंड टेक पार्क का भूमि पूजन करेंगे। पंचशील से ही अतुल जी पास में है। और वहाँ कौन है? मोहित पंचशील, मोहित और जैन नितिन जी। जी, बहुत अच्छा। चलिए सब जोरदार ताली बजाइए इंदौर के लिए। मोहित, किसके पास माइक है? नितिन के पास है। चलो नितिन आप ही बात कर लो, चलेगा। जरूर जरूर सर। बताइए बताइए। सर मैं आज पहली बार इंदौर आया हूँ एंड मुझे आज पूरे सिटी का टूर करने का मौका भी मिला। दिस सिटी इज वन ऑफ द नाइसेस्ट सिटी इन इंडिया आई हैव एवर विजिटेड। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जो आपने पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड बाय द IT कंपनीज, इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी। गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, international connectivity, wide roads, all of that is available in plenty, and this is what is required by the IT companies. Panchashil is very excited to come up with its IT park here in the super corridor. We will be investing around 1,000 crores, and it will generate direct employment of 10,000 people and indirect employment of around 25,000 नितिन जरा रोक रहा हूं मैं तुमको। तुम हमारा घाटा मत करो। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं, एक बार जो मध्य प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश का ही हो जाता है, बाहर नहीं जाता है। इसलिए हम आपको यहाँ के लिए और खासकर इंदौर के लिए बधाई दे रहे हैं। मैं अतुल जी से निवेदन कर रहा हूँ, तुम 1,000 करोड़ बता रहे हो, मैंने कहा जरा 4 पायदान और ऊपर पहुंचाना पड़ेगा 5,000 करोड़ की तरफ से। अतुल जी मेरे पास है, मैं उनको माइक दे रहा हूँ, अतुल जी खुद बताएं। Apart from IT park, we will invest in data center. So we will invest more than what you have committed. Thank you. बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, आप कृपया आप दृष्टि IITI इंक्यूबेशन सेंटर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं।
रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी दृष्टि IITI इंक्यूबेशन सेंटर इंदौर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं, कृपया आप CEO एंड इंक्यूबेटर सेंटर्स का लोकार्पण करेंगे। सबसे पहला लोकार्पण बेल इंदौर का। बेल इंदौर से श्री रजनीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहाँ कोई है? माननीय मुख्यमंत्री साहब जी, मैं रजनीश शर्मा, डायरेक्टर बैंगलोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर इंदौर में आज आपके कर कमलों से इसका उद्घाटन किया जा रहा है, यहाँ से बात कर रहा हूँ। सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पायनियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1954 से देश की सेवा में कार्यरत है। सब बैठ जाए और थोड़ी देर बैठ के करना। हाँ, बताएं बैठिए आप अभी और चेयर दो। और हम जी बताएं जी और हम जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, EW सिस्टम्स, सो स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स हम नेशनल डिफेंस सर्विसेज को, ट्राई सर्विसेज को देते हैं और हम इन्हीं सभी इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज ये जो आपका। बहुत धन्यवाद। आज काफी लोगों का भूमि पूजन लोकार्पण होने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आपका। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे पास ऐसे इस प्रकार के प्रयोग और खास करके इस प्रकार के प्रोजेक्ट बहुत आए। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई आप। धन्यवाद आदरणीय। और अब मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आप कास्ट एनेक्स का रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण करेंगे। कास्ट एनेक्स से श्री अर्जुन यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कहाँ से जुड़े अर्जुन जी? सर, सिम्हासा IT पार्क इंदौर। वाह, बहुत अच्छा। क्या करने वाले हो आप? सर, कास्ट एनेक्स में हम प्रतिदिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्री ऑटोमेशन, IoT और सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़ी हुई नई तकनीक विकसित कर रहे हैं और इन तकनीक से जुड़े हुए कुछ प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट का उपयोग विभिन्न उद्योगों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इसमें? सर, इस विषय में कास्ट एनेक्स प्रदेश में लगभग 100 करोड़ के निवेश के लिए प्रतिबद्ध है और जिससे कि 150 से अधिक संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान किए चलिए, जाएंगे। बहुत बधाई। हम तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सबका स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजा अर्जुन भाई के लिए। बहुत बधाई, बहुत बधाई। धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर जबलपुर IT पार्क ब्लॉक B का लोकार्पण करें। तत्पश्चात मेरा आपसे निवेदन है कि आप पुनः रिमोट का बटन दबाकर वर्की टेक पार्क का लोकार्पण करें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कई लेटर ऑफ अलॉटमेंट्स जो हैं इकाइयों को प्रदान किए जाने हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। साथ ही साथ मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूं ऑप्टिकल फाइबर को कि कृपया ऑप्टिकल फाइबर से जनरल मैनेजर दिपिन मिस्त्री जी मंच पर आकर ये LOA माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करेंगे। 1 Gbps की कनेक्टिविटी 5 शहरों में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर शामिल हैं। इसमें निवेश राशि लगभग 12 करोड़ रुपए की है। जोरदार तालियां हो जाएं ऑप्टिकल फाइबर के लिए। और इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप मंच के समीप आकर पारितोष मांगल जी, अमित यादव जी, मनोज मोदी जी, अनिरुद्ध केला जी, कृपया आप जल्द से जल्द मंच पर उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट्स
प्राप्त करेंगे। पारितोष मंगल इन्फिनी सेल्स भोपाल श्री अमित यादव, सिट्राइन टेक्नोलॉजी भोपाल श्री मनोज मोदी, कास्ट एनेक्स प्राइवेट लिमिटेड इंदौर श्री अनिरुद्ध केला, साइंटिफिक मेस टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर से। तत्पश्चात मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जल्द से जल्द श्री नितिन अग्रवाल जी, श्री अर्पित कंठाली जी, सुश्री सुनीता तांबोली जी और श्री रोहन श्रीवास्तव जी भी मंच के समीप आए और जल्द से जल्द मंच पर पधार कर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्राप्त करें। श्री नितिन अग्रवाल, जोल्ट एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, अर्पित कंठाली जी, सम्यक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, सुश्री सुनीता तांबोली जी, कास्ट एनेक्स प्राइवेट लिमिटेड इंदौर और श्री रोहन श्रीवास्तव जी, RAR इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर से। और अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं इसके बाद निवेदन करूंगी आदरणीय ACS महोदय श्री संजय दुबे जी से, साथ ही साथ आईसर से यहां पधारे प्रतिनिधि गोवर्धन दास जी से। आप दोनों के बीच एक एग्रीमेंट जो है उसका एक्सचेंज होने जा रहा है। ये समझौता ज्ञापन मध्य प्रदेश ड्रोन नीति के तहत ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के संबंध में है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के बीच में मध्य प्रदेश में ड्रोन पॉलिसी के संबंध में प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलने जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद आदरणीय। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं, अभी जो लोकार्पण और भूमि पूजन हुए हैं वो आईटी के सेक्टर के हुए हैं और अब गैर आईटी सेक्टर के लोकार्पण और भूमि पूजन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण और भूमि पूजन करने जा रहे हैं विभिन्न इकाइयों का, जिसमें लोकार्पण, भूमि पूजन और आशय पत्र को मिलाकर लगभग 19 की संख्या में है। और यदि हम कुल प्रस्तावित निवेश की बात करें तो 753.55 करोड़ का प्रस्तावित निवेश है और कुल प्रस्तावित रोजगार जो है 3,111। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप इन सभी इकाइयों का रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण करें। मेसर्स शिवांगी रोलिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स संतोष इंजीनियरिंग, मेसर्स श्री महालक्ष्मी CCR लिमिटेड, मेसर्स बालाजी पेट सॉल्यूशंस, कामाख्या इंडस्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड, पायनियर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, हिंडेक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रॉन्ग लाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अरावली इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, सॉल्यूशन एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इन सभी इकाइयों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अब कुछ इकाइयों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए जाने हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप जल्द से जल्द मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त करें। मेसर्स बू यांग स्काई कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियां हो जाए, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। कार्यक्रम बेहद खास है और मध्य प्रदेश, देश और देश के विभिन्न हिस्सों से यहां पर प्रतिनिधि आए हुए हैं। इसके बाद मेसर्स एफेवर CDS प्राइवेट लिमिटेड, ये मेडिकल डिवाइस पार्क होने जा रहा है। मेसर्स एफेवर CDS प्राइवेट लिमिटेड, मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में लगभग प्रस्तावित निवेश जो है 207 करोड़ का है और 486 लोगों को रोजगार आप प्रदान करने जा रहे हैं। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी मेसर्स कॉलिन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से, कृपया आप मंच पर पधारें और ये आशय पत्र प्राप्त करें। मेगा फूड विदर एंड
एसेसरीज क्लस्टर सीतापुर में आपकी इकाई है। फुटवेयर एंड एसेसरीज की आप निर्माता हैं। निवेश की यदि हम बात करें तो प्रस्तावित निवेश माननीय मुख्यमंत्री जी मेसर्स एफीवेयर सीडीएस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आशय पत्र प्रदान कर रहे हैं मेसर्स कॉलिन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को। आपकी प्रस्तावित निवेश राशि है 83 करोड़ और कुल 220 लोगों को आप रोजगार प्रदान करने जा रहे हैं। इसके बाद मेसर्स गुरु कृपा इंटरप्राइजेस, आप तैयार रहें। मेसर्स गुरु कृपा इंटरप्राइजेस आप फुटवेयर एंड एसेसरीज निर्माता हैं। आपकी निवेश राशि है लगभग 20 करोड़ और आप 400 लोगों को रोजगार प्रदान करने जा रहे हैं। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी मेसर्स आज्ञा ऑटो लिमिटेड से, कृपया आप मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से आशय पत्र प्राप्त करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मेसर्स आज्ञा ऑटो लिमिटेड को आशय पत्र वितरित करते हुए, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क है, ऑटो कंपोनेंट्स के निर्माता है। और इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ मेसर्स खुराना एंड कंपनी को कि कृपया आप मंच पर पधारें और आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करें। मेसर्स खुराना एंड कंपनी, आप एक फुटवेयर एंड एसेसरी निर्माता हैं। आपकी प्रस्तावित निवेश राशि है 10 करोड़ और आप कुल 100 लोगों को रोजगार प्रदान करने जा रहे हैं। और इसके बाद मैं निवेदन करती हूं मेसर्स सैम प्रोसेसर को, कृपया आप मंच पर पधारें। मेसर्स सैम प्रोसेसर, इसके बाद मेसर्स अशोका बूट फैक्ट्री से मैं निवेदन करती हूं कृपया आप प्रतिनिधि मंच पर पधारें और ये आशय पत्र प्राप्त करें। आपकी प्रस्तावित निवेश राशि है 3 करोड़ और आप लगभग 100 लोगों को रोजगार प्रदान करने जा रहे हैं। इसके बाद मेरा निवेदन है मेसर्स प्लेऑट, कृपया आप जल्द से जल्द मंच पर पधारें। आप सॉफ्ट टॉयज के निर्माता हैं। आपकी प्रस्तावित निवेश राशि है 1.25 करोड़ और आप लगभग 50 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। और इसके बाद मेरा निवेदन है मेसर्स एपियन से, कृपया आप मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये आशय पत्र आप प्राप्त करेंगे। आप बायो फर्टिलाइजर के निर्माता हैं। लगभग 80 लाख रुपए का आप निवेश करने जा रहे हैं और 9 लोगों को आप ये रोजगार प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं
मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नए नीति दिशा निर्देश जारी करने जा रही है। ये 4 गेम चेंजिंग नीतियां ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, ड्रोन और AVGC XR के लिए कार्यान्वयन दिशा निर्देशों का अनावरण करने के लिए तैयार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इन नीति दिशा निर्देशों को जारी करें। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी प्रतियों का भी अनावरण करने जा रहे हैं। ये सभी गाइडलाइंस हैं, GCC नीति, सेमीकंडक्टर दिशा निर्देश, ड्रोन नीति दिशा निर्देश और AVGC XR दिशा निर्देश। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए 4 पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूं, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इन सभी पोर्टल्स का शुभारंभ करें। MPSC का IT इन्वेस्टमेंट पोर्टल मध्य प्रदेश के निवेशकों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अनुकंपा नियुक्ति पोर्टल माध्यम से शासकीय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग पोर्टल और HRMS मोबाइल ऐप, ये ऐप के माध्यम से मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक की गतिविधियों को देखा जा सकेगा। और इन सभी भूमि पूजन, लोकार्पण, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेटर ऑफ इंटेंट और एग्रीमेंट के वितरण के बाद बारी है उस एक क्षण की जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। स्वागत करते हैं करतल ध्वनि के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी मुख्यमंत्री, संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि पहले आदरणीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी कुछ एक क्षणों के लिए बोलेंगे। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय श्री तुलसी सिलावट जी के लिए। मध्य प्रदेश के कर्मठ, लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री सम्माननीय कैलाश जी, सम्माननीय विधायकगण, महापौर जी, प्रमुख सचिव जी, उपस्थित मंच पर आसीन आए सभी देश विदेश से उद्योगपतिगण, इस क्लीन सिटी में, इस ग्रीन सिटी में इंदौर में आप आए, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कई लोग अभी जब मुख्यमंत्री जी से मिल रहे थे, मध्य प्रदेश की सरकार का सोच, मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प, मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य, मध्य प्रदेश की सरकार का उद्देश्य उद्योग को बढ़ाने का, क्योंकि नया युग विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है और यह हमारी सरकार का संकल्प है। मैं पुनः इस मां अहिल्या की नगरी में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सम्मानीय हमारे लोकप्रिय सांसद जी का नाम छूट गया था, मैं फिर से आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का। जोरदार तालियां हो जाएं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें।
मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी तुलसी सिलावट जी, सांसद जी, आदरणीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय सभी विधायकगण, मुख्य सचिव अनुराग जी और उनकी पूरी टीम, यहाँ उपस्थित प्रदेश और देश के बाहर से भी आए सभी हमारे आईटी सेक्टर्स के एंटरप्रेन्योर्स, मैं आप सबका इंदौर मां अहिल्या की नगरी में दोनों हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये बात सही है कि इंदौर 2 टियर सिटी माना जाता है, पर अब मुझे 2 टियर सिटी से आपत्ति है। ये शहर 2 टियर नहीं रहा। अब ये शहर अपने आप उसकी आवाज़ बोलती है और आप किसी भी अच्छे शहर से इसकी तुलना कर सकते हैं। ये शहर किसी से कम नहीं है और इस शहर के नागरिक भी किसी से कम नहीं है। ये इस शहर की विशेषता है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आप जिस शहर में बैठे हैं वो शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। मुझे कहते हुए यहाँ पर गर्व है मुझे कि यह शहर वह शहर है जो अवेयरनेस के मामले में पूरे देश में सबसे अलग अपनी क्षमता रखता है। मुझे कहते हुए ये भी गर्व है कि आने वाले समय में यह शहर 2 टियर शहर नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी क्लीन इंदौर है, हम ग्रीन इंदौर में भी नंबर 1 होंगे। हमने पिछले साल 51 लाख पेड़ लगाए थे और उनके सर्वाइवल की गारंटी ली थी और दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम रिकॉर्ड करवाया है हमने। इस साल फिर 51 लाख पेड़ लगाएंगे, लगातार 51 लाख पेड़ हर साल लगाएंगे और इस शहर का 5 डिग्री टेम्परेचर हम कम करेंगे और इंदौर क्लीन सिटी भी कहलाएगा क्लीन सिटी के साथ। ये हमारा वादा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रोएक्टिव मुख्यमंत्री जो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, प्रदेश के विकास के साथ काम करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत 2047 में जब स्वतंत्रता के 100 साल हो तो यह देश एक ताकतवर देश हो दुनिया का, और उस दिशा में हमारे कदम बढ़ रहे हैं। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच एक अलग प्रकार का है। वे पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं, वे लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आप में से कुछ लोग कई बार बहस में कहते हैं कि ये जो आप मुफ्त चीज़ें बांट रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैं भी मानता हूँ इसका, मैं भी इसका पक्षधर हूँ, पर आप ये क्या समझते हैं कि जब वो उनके पास पैसा जाता है तो वो पैसा बाजार में आता है। यदि वो पैसा बाजार में आता है तो इकोनॉमी का चक्र घूमता है, पहिया घूमता है और कहीं ना कहीं वो फिर लौटकर आपके पास आता है और सरकार के पास आता है। तो ये एक नई प्रकार की इकोनॉमी है जिसने बहुत जल्दी इस देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में लाया है और अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम जापान और जर्मनी को भी छोड़ने वाले हैं। उसमें आप लोगों की मदद की बहुत आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे हर क्षेत्र के अंदर। हमारे यहाँ इस वक्त जो अधिकारियों की टीम है और पॉलिटिकल टीम है वो मैं कह सकता हूं कि सबसे अच्छी टीमों में से एक टीम है जहां आपको काम करने के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन कर रहा हूं। एक बार तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं आपसे अब निवेदन करती हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का धन्यवाद करें। और अब हम सभी स्वागत करेंगे सभी का ध्यान रखने वाले, सभी का ख्याल रखने वाले मध्य प्रदेश के संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। करताल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। मां अहिल्या की नगरी इंदौर, जिसको कई गौरव हासिल है, सबसे स्वच्छ नगरी अब ग्रीन नगरी की तरफ बढ़ी रही है। जो बात अभी हमारे बीच में आई है, पेड़ की इतनी बड़ी संख्या
कि हमारे लिए वो प्रेरणा बनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी जवर्गी जी, माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर जी ललवानी जी, माननीय विधायक जिनके क्षेत्र में हम बैठे माननीय रमेश मेंदोला जी, गोलू शुक्ला जी, मनोज पटेल जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, इस अवसर पर हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, हमारे बीच मौजूद सभी वरिष्ठ नेतागण, सरकार के मुख्य सचिव माननीय अनुराग जी, इस आयोजन की इस रूपरेखा और पूरा सूत्र जिनके पास है CS संजय दुबे जी, समस्त अधिकारीगण, और सबसे अच्छी बात IT और इससे जुड़े हुए सेक्टर के सारे, भगवान के उस दरबार की तरह यह दरबार शोभा बढ़ा रहा है जहां इंद्र का दरबार भी शोभायमान होकर के आज हमारे इंदौर से आपस में कंपटीशन कर रहा होगा कि वहां का दरबार ज्यादा अच्छा है कि यहाँ का दरबार अपना आनंद ला रहा है। मैं आज इस अवसर पर जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने सभी क्षेत्र के प्रमुख स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार की हस्तियों के लिए। देखें, हम हमारे तो माननीय विश्वनाथ जी आए बेंगलोर से चल करके, हमारे लिए तो मैं तो बाबा महाकाल की नगरी का हूँ, तो विश्वनाथ जी हम तो आपको उस रूप में ही मानते हैं जो काल को भी नियत करते, ऐसे महाकाल जो अपने उत्सर्ग से दुनिया को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है अतुल जी यहाँ आए। अतुल जी से जरूर मैं बात कर रहा हूँ, अतुल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपने 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात का तो भूमि पूजन किया, हमने एक में नहीं बात बनेगी, 5000 करोड़ की बात बनेगी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अतुल जी के लिए भी। पंचशील के माध्यम से आपने अपनी अलग प्रकार की पूना को अपनी दुनिया ही एक नई प्रकार से ले गए। जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो, न केवल आप, मैं देख रहा हूं यहाँ से कई प्रकार के कई सारे मित्रों ने अलग अलग, थोड़े समय की कमी है, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज इस दौर में आकर के खड़े हुए, जहां आज से 10-15 साल पहले सोचना भी बड़ा मुश्किल जाता था। हम सब जानते हैं कि वो दौर कितनी तेजी से बदला। एक व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति के भरोसे से कितना बदलाव ला सकता है, यह आज हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस कार्यकाल का केवल 11 ही साल हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 11 साल में अमूल चूल परिवर्तन। जिस भी क्षेत्र में जाओ, जिस प्रकार से आप काम को देखोगे, पूरा देश दुनिया के सामने एक अलग पोजीशन में खड़ा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार के गठन के बाद भी हमने तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग के हमारे प्रमुख सचिव यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राघवेंद्र जी बैठे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी बैठे हैं। हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर भी, कभी सोच नहीं सकते थे कि उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर ये तो चलो बड़े हैं, लेकिन नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट जा सकते हैं। शहडोल जैसे स्थान पर भी इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री 3500 करोड़ की, और एक अकेला ऐसा नहीं, सब मिलाकर के जब हम अपने GIS पे गए तो सब मिला के 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना है, और अब हम उसके बाद रुके नहीं हैं। जैसे अनुराग जी ने कहा, सही कहा है कि 60 दिन से भी कम समय में अभी हम IT सेक्टर की बात कर रहे हैं, और IT की भी 4 पॉलिसियां मैं पहले अनाउंस कर देता हूं, उसके बाद थोड़ी बात बढ़ाऊंगा। हमारे वीर जी ने आकर मिठाई तो खिलाई दी है, आपकी पंजाब की मिठाई निश्चित रूप से यश देगी, मैं पक्की बात कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर टेक डेस्टिनेशन के कदम बढ़ते हुए, खास करके आज में जो नई घोषणा, यह हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बैरसिया में 209 एकड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से हम प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की पावर हाउस बनाएंगे। यहाँ मोबाइल, सेमीकंडक्टर, डिवाइस पार्क बनाने वाली सभी कंपनियों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। 1500 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करते हुए लगभग 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेक इन मध्य प्रदेश की नई इस
पॉलिसी का लाभ मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर बैरसिया में बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से। मैं आज के इस अवसर पर स्पेस टेक नीति पर काम करते हुए मध्य प्रदेश को हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र बनाएंगे। इस नीति के अंतर्गत हम स्टार्टअप को अंतरिक्ष अनुसंधान, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एवं कमर्शियल स्पेस मिशंस के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता, मैं आज के इस अवसर पर साइबर से जुड़े हुए सुरक्षा और अलग अलग प्रकार के सभी कामों को लेकर के, ये जो डेटा प्रोटेक्शन से ट्रेनिंग और इत्यादि कितने प्रकार के काम करते हुए हम ये एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अगर ये सब देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, जैसे हमको उद्घाटन में समय लग रहा था कि अपनी एक एक करके अलग अलग बात करें तो हर एक को इतना उत्साह है, उसको लगता है कि बस मेरे से बात कर रहे, दूसरे का नंबर ही नहीं आने देगा, थोड़ा जाती हो जाएगी। आज के इस अवसर पर जितना उत्साह उमंग के साथ एक एक अलग अलग निवेशक, इसलिए हमने भी बड़ा मन करके इसमें कोई छोटा नहीं किया है कि हर एक किसी के साथ जब इंदौर की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंदौर में भी एग्रीटेक उत्कृष्टता केंद्र IIT इंदौर के साथ हम ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के एग्रीटेक और खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी और जितने प्रकार से मैं परदेसीपुरा के इस प्रोजेक्ट पे आज सभी भास्कर में पढ़ रहा था कि ये अपने लिए चैलेंज है। मुझे इस बात का संतोष है कि ये परदेसीपुरा का हमारा IT पार्क, इसको PPP मॉडल पे दे दिया ना दुबे जी, गया है, जोरदार ताली बजाओ। आज वो सवेरे का यहाँ समाचार मैंने आते ही पढ़ा था कि ये लगभग 8-10 साल से पाइपलाइन में था, उठा नहीं रहे और अब धीरे धीरे लग ऐसा रहा है कि हमारे पास जमीन कम पड़ रही है, प्रोजेक्ट मांगने वाले बहुत आ रहे हैं। जिस प्रकार का समय चला है और अब हमारे अपने लिए अभी केवल IT के नहीं, IT के साथ जितने प्रकार सेमीकंडक्टर और ड्रोन और डेटा टेक्नोलॉजी, जितने प्रकार डेटा सेंटर की बात भी आई है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि IT पार्क भोपाल में भी, जो आपने अभी 5 जगह की बात करी थी, 5 नहीं 6ठा है, रीवा छूट गया है। आज की स्थिति में रीवा, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तो राजधानी है ही इस पूरे क्षेत्र की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने वर्तमान के दौर में बदलते समय के साथ। और न केवल IT और इस प्रकार की व्यवस्था, हमने बाकी को भी रोजगार परक पिछली 18 नीतियां जब यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने लोकार्पित की थी। और यही तो कारण है, ऐसा लग रहा कि सारा फुटवेयर अगल बगल से निकल करके पूरे देश और देश से आगे जाके कोरिया के मित्र भी आए ना कोरिया वाले, जोरदार अभिनंदन करो। कोरिया से चलकर हमारी पॉलिसी के आधार पर एक टीम जापान से आकर के खड़ी, एक टीम कोरिया से आ रही, पूरी दुनिया के निवेशक कहां से कितने प्रकार से गौरवान्वित कर रहे हैं। और कोरिया वालों ने तो कहा कि हमारा तो वो भगवान राम की नगरी अयोध्या से प्राचीन काल में संबंध था। तो हमने कहा जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो कोरिया का वो संबंध वापस जिंदा हो रहा है, जिसके कारण से हजारों साल पुरानी भारत की परंपरा विदेश के इस प्रकार के राज परिवारों से संबंध बनता है। मैं यहाँ आकर के आज जिन जिन प्रकार से लोगों ने MOU किए उनको भी बधाई देता हूँ, जिनने अपने नए प्रकार के नए संकल्प के आधार पर मेगा फुटवेयर की जब हमने पॉलिसी डिक्लेयर की तो 1, 2, 3, 4, 5 सीतापुर, हाथोद, कहाँ से हमारे कितने प्रकार के लोग आए। मैं गुरु कृपा महाराज आपको भी बधाई देता हूँ, हमारे सरदार जी, वीर जी के साथ ये सभी मित्रों को, खास करके आपने अमित बाजोरिया जी, राजेश भारद्वाज जी, महेश गर्ग जी, धर्मेंद्र नरुला जी, मनमोहन गुप्ता जी, RK खुराना जी, समीर कमानी जी, सुनील गुप्ता जी और मंच वालों की तो सूची कहीं छूटी गई मेरे से, जिनके कितने प्रकार से अलग अलग अनाउंसमेंट हुए हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं आपके सबके सहयोग के माध्यम से। वैसे एक बात सत्य है, हमारे यहाँ उद्योगपति का बनना एक पवित्र मंदिर के बनने के बराबर है। आपके माध्यम से कई लोगों को जीवन मिलता, कई लोगों को रोजगार मिलता है। ये सच्चे अर्थों में मानव सेवा है। हमारे लिए परमात्मा मंदिर में हमको आशीर्वाद देता है, ऐसे ही सच्चे अर्थों में आपकी कर्मशील भावना के आधार पर, आपकी श्रम शक्ति के आधार पर जीता जागता एक अपना लोगों का जीवन यापन करने का एक बड़ा केंद्र बनता है, जिसके माध्यम से कितने प्रकार के लोगों का पेट पलता है। और आज के समय में जब बदलते दौर में सबकी अनुकूलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको प्रोत्साहित करते हैं
वो दौर गया जब कभी उद्योगपति के साथ हाथ मिलाते हुए या फोटो खींचते दिखता है तो लोग शंका करते थे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बना था। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ देशों के सामने अगर मध्य प्रदेश या बाकी देश अपने देश को सामने खड़ा करके देखो, आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी के युग में इजराइल जैसा 1 करोड़ से कम आबादी का देश कितने प्रकार से अपने आप को उन्नति के क्षेत्र में ले गया, तो हम तो 145 करोड़ से ज्यादा वाले हैं। दुर्भाग्य के साथ 1948 में आजाद हुआ था इजराइल और हम भी 47 में आजाद हुए। केवल इजराइल नहीं, ब्राजील से लेकर के इतने सारे देश, जापान, जर्मनी की बात अगर करो तो ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनकी हालत क्या हो गई थी। लेकिन अपनी उद्यमशीलता के, वहां के नागरिकों की और सरकार की छत्र छाया में सभी प्रकार से फलने फूलने का जब मौका मिला तो आज वो देश अपने आप में एक बड़े बड़े अर्थव्यवस्था बनकर के फिर छाती ठोक करके सबके सामने खड़े हुए। कभी हम अर्थव्यवस्था का आकलन इस नाते से करें कि 47 में भी 1 रुपया और $1 1 रुपया दोनों बराबर ही थे, लेकिन आज कितना अंतर आया। केवल ये जो व्यवस्था का संचालन करने के सूत्र सरकार के माध्यम से जिनके हाथ में थे, उन्होंने हमारी क्षमता का, योग्यता का, इस देश के नागरिकों के साथ का, इसकी उद्यमशीलता का सही से उपयोग नहीं किया, उसका नुकसान हमको हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने आते ही वो सब कुछ बदलने का प्रयास किया जिनके कारण से अतीत के कालक्रम में हमारी प्रगति रुकी थी। अब सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब देखते हैं आज बदलते दौर का भारत है और बदलते दौर का भारत सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों को बढ़ते हुए सभी राज्यों को भी लेके बढ़ रहा है। इसीलिए तो हम तो ठीक, हमारा परंपरागत दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर के नागरिक भी अब कह रहे हैं कि काश मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते तो हमारे को इतने दुर्दिन नहीं देखना पड़ते। ये जो बदलते दौर का समय है, मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर इंदौर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मैं आज इसकी घोषणा तो अब संजय जी से कहूंगा कि आप ही बताना भाई, क्योंकि मैं तो इतने प्रकार से इतनी सारी चीजें जुड़ गई है कि आपका वो रिमोट का बटन दबा दबा के अंगूठा दर्द करने लग गया। कितनी बार दबाएं और कितनी देर खड़े रहे। इतना माहौल अनुकूल बना है कि इस माहौल को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति अभिनंदन, लेकिन आप रुकना मत, थमना मत। अभी मध्य प्रदेश ने तो शुरुआत की है कई सारे सेक्टर में। अभी एग्रीकल्चर का सेक्टर हमारा चालू होने वाला है। 3 तारीख को हमारा एग्रीकल्चर का पहला हमारा कृषि मेला, जिसके माध्यम से, क्योंकि ये आप देखिए आज मध्य प्रदेश के अंदर कितनी प्रकार की संभावना भरी पड़ी है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश की है। हमारी कृषि विकास दर वाकई आश्चर्यकारी है। और कृषि विकास दर नहीं, अभी हमारा अपना इरिगेटेड एरिया भी अगर हम देखेंगे तो इरिगेटेड एरिया लगभग 55 लाख हेक्टेयर है। आप अगर 2002-03 की तरफ जाओगे तो केवल 7 लाख हेक्टेयर था। हमारे मध्य प्रदेश की राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2002-03 तक केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी। आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आज स्थिति है। और 2047 तक हमने कल्पना की है कि 22,50,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए। मध्य प्रदेश उस पर काम कर रहा है। ऐसे कई बड़े टारगेट लेके हम चल रहे हैं। निश्चित रूप से आपके और हमारे साथ मिलने के साथ भारत आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश को आपका साथ मिलेगा। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी वाणी और दिशा निर्देश हम सगिति को प्रगति की ओर अग्रसर करते आए हैं और आज के इस मार्गदर्शन के बाद नए उत्साह और नई प्रेरणा के साथ हम सभी आगे बढ़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम की सफलता के बाद मैं धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री आशीष वशिष्ठ जी, एमडी एमपीएससीडीसी। जोरदार तालियां हो जाएं श्री आशीष वशिष्ठ जी के लिए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सर, अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री संजय दुबे सर, एवं मंच पर उपस्थित सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, प्रतिष्ठित उद्योग जगत के उद्योगपति, सम्मानीय अतिथिगण एवं सभी मीडिया के साथियों,